ہمارے جو نیکسٹ جو رول ماڈل جو اسپیکر ہیں عالمہ شیخ نویرہ جو ایم ڈی آف ہیرا گولڈ. اب یہ اس لیے یہاں نہیں ہے کیونکہ انہوں نے یہ ہمارے جو ہیرا گولڈ جو ہے ہمارا یہ کو اسپانسر ہے اس ایونٹ کا. بالکل لیڈی انٹرپرینور ایک لیڈی بزنس مین ہے جو ایم ڈی ہیں ہیرا گولڈ کی اور ایک بہت ہی سکسیسفل بزنس ماڈل چلا رہی ہیں یہاں پر. میرا خیال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم. الحمدللہ میں سب سے پہلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ رب العالمین نے ہمیں مسلمان بنا کر یہاں پر مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، مسلمانوں کی کامیابی کے لیے یہ پروگرام جو رکھا گیا ہے یہ آج کے ماحول میں بہت ہی ضروری ہے. اور میں اس کے بعد اس پروگرام کے چلانے والوں کا بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو مسلمانوں کے لیے بھلائی کے لیے کوشش کی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کیونکہ دنیا میں ہر انسان ایک مقصد لے کر جیتا ہے کہ کوئی صرف یہ مقصد لے کے جیتا ہے کہ میرے گھر والے اور بچوں کی کامیابی ہو جائے، بس یہ میرا مقصد ہے. کوئی صرف یہ مقصد لے کر جیتے ہیں کہ میری یہ جاب ہے، یہ جاب مجھے مل جائے تو بس میں اس میں کامیاب ہوں. کوئی یہ مقصد لے کر جیتے ہیں کہ میرا یہ گھر نیا بن گیا، میرا اس میں کامیابی ہے. مگر عزیز بہنیں اور بھائیوں اور طالبات کہ سب سے زیادہ دنیا میں کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلتے ہوئے دنیاوی نظام کو بھی اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ دنیا تو ہمارے لیے صرف چند دنوں کے لیے ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم وموسیٰ. جیسے کہ دنیا کی زندگی تمہارے لیے ایک مختصر زندگی ہے، جو تمہاری آخرت میں آنے والی زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی زندگی ہے. مگر میں یہ بتانا چاہوں گی کہ ایک چھوٹے سے وقت میں کہ جو اللہ نے ہمیں 50-60 سال کی عمر جو دیا ہے وہ بھی بھروسہ نہیں ہے، تو اس میں ہم بہت بڑے 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 پلان کرتے ہیں، وہ صرف دنیا تک کے حد تک رہ جانے کے. مگر ہم کو ایسے پلان کرنا چاہیے جو ہماری فیوچر یعنی جو ہماری آنے والی زندگی ہے اس میں کامیابی کے لیے. تو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں 18 سال سے سوشل ورک کرتی ہوں، جس میں میں مسلمان لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اور مسلمان خواتین کی مدد کے لیے اور مسلمان لوگوں کی مدد کے لیے میں بہت زیادہ کوشش کرتی آ رہی. اور اس کے اندر مجھے کافی پریشانیوں کو جھیلنا پڑا. اور کبھی کبھی جو ہے لوگ مجھے کہتے کہ اب تو تم یہ 300 بچیوں کی یا 400 بچیوں کی ذمہ داری لے لی، اب تمہارا کیا حال ہوگا. میں میرا ایکسپیرینس آپ کو بتاتی ہوں. میرے دل میں فوراً قرآن کی وہ آیت آ جاتی ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، سارے زمین کو روزی دینے والا اللہ ہے. تو جب میں یہ ذمہ داری لے لی تو اللہ کی طرف سے اس کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. اب جب کسی بھی معاملے میں لوگ مجھے ڈراتے ہیں اور پریشان کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے یہ تو سوشل ورک تھا جیسے میں کرتی چلی آ رہی تھی الحمدللہ، اس کے لیے کافی مال کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے. جیسے اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا کہ انفسکم و اموالکم، تمہارے مالوں کی بھی ضرورت ہے اور تمہارے جانوں کی بھی ضرورت ہے اللہ کے دین کے لیے. تو یہ مال کی بھی بہت بڑی کمی پڑ جاتی تھی. تو یہاں تک کہ لوگ مجھے کبھی کبھی اپنے رشتہ داروں میں، اپنے فیملیز میں، اپنے قریبی رہنے والے بھی کمزور بنا دیتے تھے کہ اب اتنا بڑا اخراجات کر کے تو یہ کام تو نہیں کر سکتی، اب تو یہ کام 1 سال کے بعد بند کرنا پڑے گا یا تو 6 ماہ کے بعد بند کرنا پڑے گا. مگر میں جب بھی ایسا موقع آتا میرا دھیان اللہ کی طرف جاتا اور میں یہ آیت کو سوچتی. اللہ تعالیٰ جب قرآن میں کہتے ہیں وَتَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، جو اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے. تو سبحان اللہ، مجھے اللہ نے مجھے ہر قدم پر کامیابی دی، ہر قدم پر میرے اللہ نے جو ہے اسی میں مدد دی. تو میرے عزیز طالبات اور بھائیوں اور بہنوں، میں یہی گزارش کروں گی، کامیابی سے بڑا راز اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے. اور اللہ کی ذات پر توکل کرنا ہے. جب ایک کام کے
के लिए कदम को आगे बढ़ा दिए तो वो काम के लिए कदम को कभी भी पीछे नहीं हटाना है, और कुछ दिन कोशिश करेंगे उसमें हम जरूर कामयाब रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, जब मुझे बिजनेस करने का अल्लाह ताला ने दिल में इरादा डाला अल्लाह के तरफ से कि मैं क्यों इस चीज में परेशान हो जाऊं, मैं कभी कभी जो है किसी के पास डोनेशन के लिए जाती थी और बताती थी, तो उस वक्त में बाज लोग अच्छे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमें काफी ज्यादा मदद किए हैं। बाज लोग ऐसी बातें करते थे, तुम औरत हो के ये काम करती हो, और उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ना मैं MBA हूँ, ना मैंने इंजीनियरिंग किया है, ना मैंने दुनियावी तालीम ज्यादा हासिल की है, मैं सिर्फ एक आलिमियत की हूँ और SSC की हूँ, इससे ज्यादा तालीम तो मेरे पास नहीं थी और आलिमियत में और फजीलत में। मगर मैं आज ये बात महसूस करती हूँ, जो रब की तालीम में जो भलाई है, जो रब दुनिया के कोई भी इल्म में नहीं, हर दुनिया का इल्म से ज्यादा आगे अल्लाह का इल्म है। इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम कुरान और हदीस को सीखो और रोल मॉडल हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम रोल मॉडल किसी इंसान को बना लेते हैं तो वो इंसान आज अच्छे अखलाक करता है, कल बुरे अखलाक करने लगता है, तो फिर हम कहाँ जाएं? तो इसलिए हम रोल मॉडल बनाए हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिसको रोल मॉडल बनाने का हुक्म अर्श वाले ने किया है और अर्श वाले ने उसके अखलाक की गवाही दी है, अर्श वाले ने उनकी अमानतदारी की गवाही दी है, अर्श वाले ने उनके कामयाबी की गवाही दी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम, ये मेरे नबी हैं जिनको मैं भेजा हूं और ये सीधी राह पर हैं। सुभान अल्लाह, जिसको अल्लाह ने कहा कि ये सीधी राह पर ही उन पर चलना। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं बिजनेस भी अल्लाह के फजलो करम से जब मैंने शुरू की तो बल्कि इंडिया में नहीं, जैसे इंटरनेशनल में सबसे पहले मेरा भाई जो यहाँ पर रहमतुल्लाह बैठा हुआ है उसको लेकर मैं वेस्ट अफ्रीका गई गोल्ड के माइनिंग में सर्वे करने के लिए कि गोल्ड कैसा खरीदना है, कैसे लेना है, गोल्ड का डस्ट कैसे होता है, वो डस्ट को कैसे बार में बनाना है, कंपनी से कैसे एग्रीमेंट होना है, क्या है, मुझे कुछ इल्म नहीं था। मगर अल्लाह से यह दुआ की, अल्लाह ये अखराजात इतने ज्यादा बड़े हैं तो छोटा मोटा बिजनेस तो मैं नहीं कर सकती, मुझे कुछ ऐसा बड़ा बिजनेस बता जो मुझे ये सारे चीजों के लिए कामयाब हो जाए। क्या तेरे अर्श से तू मुझे डायरेक्ट नहीं दे सकता? तो सुभान अल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि 2005 में मैं और मेरा भाई वहां पर जो है सर्वे करने के लिए गए, मगर 6 माह तक बहुत स्ट्रगल करना पड़ा वहां पर। खास मुझे जो चलने की आदत नहीं होती तो उसमें मुझे लंबे लंबे वो अंदर जंगल में माइनिंगों में जाना और उसका डस्ट देखना, कि यहाँ तक कि हम तो सोचते थे, सोने के बिस्किट को देख के पहले मैं सोचती थी कि सोने के जो बाहर होते हैं वैसे ही आते होंगे या कहीं से निकलते होंगे या कंपनी से, फैक्ट्री से। जब वहां जाने के बाद मुझे ये इल्म हासिल हुआ कि अल्लाह ताला जमीन के मिट्टी में जो है सोना छुपा के रखा है, जिस मिट्टी से जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा टनों की मिट्टी जब छानते हैं तो उसमें से 1 किलो 2 किलो सोना जो है उसमें से निकलता है, और वो भी डस्ट की शक्ल में। उसके बाद उसके बार बनाए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि वहां से हमने गोल्ड एक्सपोर्ट करना शुरू किए। जब गोल्ड एक्सपोर्ट करना भी शुरू किए तो हमारे सारे फैमिलीज में सारे लोग मजाक कर रहे थे कि ये गोल्ड का बिजनेस कर रही है, ये कैसे करेगी। जब वेस्ट अफ्रीका में भी गई तो एयरपोर्ट पे मैं पहुंची तो सिर्फ मेरा एक ही बुर्का है, यानी पर्दा करने वाली औरत वहां पर कोई भी नहीं है। यहां तक कि पर्दा तो छोड़िए कि सही लिबास भी वहां पर नहीं पहनते। उस वक्त में भी मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं अपने आप को कि मैं पर्दा कर रही हूं तो मुझे उनसे शर्म आ रही है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंदर से फख्र हासिल करती हूं। कभी भी फ्लाइट में बैठती हूं, मैं देखती हूं कि कोई भी औरत बुर्का नहीं पहनती है तो मैं फख्र हासिल करती हूं, अल्लाह मैं तेरे हुक्म पे चल रही हूं, तेरे अहकाम की पाबंदी करते हुए मैं बिजनेस कर रही हूं। सुभान अल्लाह, मेरे दिल को इसका बहुत बड़ा सुकून मिल जाता है। उसके बाद एक कंपनी वाले के पास हम लोग चले गए थे। मैं एक थोड़ा एक्सपीरियंस बताती हूँ कि अल्लाह ताला जब अल्लाह को हम मजबूत पकड़ेंगे, उस पर तवक्कल करेंगे तो अल्लाह कैसी कामयाबी देते हैं। जो मेरा भाई भी बैठा है उसने 600 किलो सोने का डस्ट ला के रख दिया इधर, तो उसने एक बात बोला कि तुमको जो है क्या करना है अब, कि वहां का एक कानून होता है वेस्ट अफ्रीका में, जो भी जाता है उनके पैरों पे झुक जाता है। तो वो कहता है कि जो भी बैयर हमसे खरीदने के लिए आता है उसका यहाँ कानून है कि उसके पैरों पे झुक जाए। मेरी बातचीत हो गई थी, अग्रीमेंट हो गया था, सारे चीजें हो गए थे, मैं ऐसे उठ के खड़ी हो गई। मैं बोली मैं तो पैरों पे नहीं झुकने वाली, क्योंकि उसकी जुबान मुझे समझ में नहीं आती थी, शुई जुबान है वहां की। तो वहां का डायरेक्टर जो अब्दुल वहाब था वो मुझे ट्रांसलेट करके बताया, वो कहता है कि उसके पैरों पर झुको।
तो मैंने कहा उसको कि मैं ये 600 किलो नहीं बल्कि 10,000 टन भी लाके यहाँ पे रख दे, मैं तो ये काम हरगिज नहीं करने वाली। मेरा अल्लाह चाहे तो इससे बड़ी कंपनी को मुझे देगा और मेरा अल्लाह चाहे तो मुझे कामयाबी देगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहां से उठ के बाहर भी नहीं निकली। उसने पूछा कि बुलाओ उसको, इतना बड़ा डिस्काउंट छोड़ के सब छोड़ के क्यों जा रही है? तो उसने उसको ट्रांसलेट करके बताया। वो कहती है कि वो किसी के सामने सर नहीं झुकाती सिर्फ उसके अल्लाह के अलावा, और वो तेरे सामने कभी भी सर नहीं झुका सकेगी, अगर चाहे तो एग्रीमेंट कर लो या ना कर लो। मगर आज अल्हम्दुलिल्लाह नंबर 1 पर अगर कोई माल दे रहा है, नंबर 1 पर कोई कंपनी हमारे लिए सपोर्ट कर रही है तो वही कर रहा है। आज हम जब भी जाते हैं वो हमको इस्लाम के बारे में सवालात करता है, हम उसको इस्लाम के बारे में बताते हैं। मेरी बहनों और अजीज तालिबात, मैं यही कहती हूँ, और कमाना है जरूरी है, दुनिया में आगे बढ़ना है जरूरी है, मगर अल्लाह के अहकाम को तोड़ कर नहीं। क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन रहोगे तो तुम ही गालिब रहोगे। मैं आज भी लोग बहुत बातें करते हैं कमजोर करने की बातें, ये ऐसे हो जाएगा, वो वैसे हो जाएगा, फुला हो जाएगा, बस मेरा ध्यान एक ही रहता है, मेरा अल्लाह जो चाहेगा वो होगा। क्योंकि इज्जत के देने वाले, जिल्लत के देने वाले अल्लाह ताला ही, अल्लाह के अलावा किसी के हाथ में ये ताकत और कुव्वत भी नहीं है। रोजी भी उतनी ही मिलती है हमको जितनी हमारे मुकद्दर में लिखी जा चुकी है, मगर एक बात खास याद रखना है, उसके लिए जिद्दोजहद करना है और कोशिश करना है, सुस्ती नहीं करना है। तो कामयाबी देने वाले अल्लाह ताला हैं। और खास कर से मैं हमारी बहनों को भी एक बात बताना चाहती हूँ कि हम अपने लड़कियों को आगे बढ़ने से बहुत ज्यादा रोकते हैं और कहते हैं हम तो मुसलमान लड़कियां हैं, हमको ऐसे ही रहना है, वैसे ही रहना है। मगर मेरी अजीज बहनों, अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान में इस बात को नाजिल किया जबकि मरियम अलैहिस्सलाम की माँ ने अल्लाह से दुआ किए थे कि अल्लाह तू मुझे एक बेटा देगा, मैं तेरे दीन की खिदमत में छोड़ दूंगी। तो उसके बाद उनको अल्लाह ने बेटी दी। अफसोस से कहने लगी कि ऐ अल्लाह, तू, मैंने तो तुझको बेटा मांगा था, अगर बेटा देता तो मैं ये खिदमत में छोड़ सकती थी, तूने तो मुझे बेटी दे दी। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं तुझको क्या मालूम, ये बेटी तेरे 1000 बेटों से ज्यादा तेरे लिए बेहतर होगी, तू क्या जानती है, मैं जानता हूं। सुभान अल्लाह। आज कुरान मजीद में 114 सूरतों में 6660 पर 8 आयतों में अल्लाह ने किसी का नाम नहीं लिया, ना खतीजतुल कुबरा का नाम, ना अम्मा आयशा का नाम, ना ज़ैनब का नाम। अगर अल्लाह ताला नाम लेता है तो सिर्फ मरियम अलैहिस्सलाम का नाम लेता है कुरान मजीद के अंदर। और अल्लाह पुकार के कहते हैं ऐ मरियम, तू सारे जहां के औरतों से पाक है, तू सारे जहां के औरतों से अच्छी है। सुभान अल्लाह, इससे बड़ा मुकाम क्या होना चाहिए। अल्लाह ने उनका जिक्र करते हुए, उनकी मजबूती को बयान करते हुए हमको बता दिया कि हमारे लिए रोल मॉडल कैसे हैं, कि उन्होंने कितनी मेहनत की मगर अल्लाह के दामन को और अल्लाह की तौहीद को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। तो मैं भाइयों से और बहनों से यही गुजारिश करूंगी कि हम अल्लाह की बात को जब मजबूत पकड़े रहेंगे और तौहीद पर कायम रहेंगे, हर बात पर तवक्कल अल्लाह पर करेंगे, हम कामयाब हो जाएंगे। हम तवक्कल कर लेंगे ये मिनिस्टर हमारी मदद करेगा, ये बहुत बड़े मालदार ही ये हमारी मदद करेंगे, ये फुला हमारी मदद करेंगे, वो सब कभी ना कभी हटते जाएंगे। जो अल्लाह की मदद को हासिल करना चाहता है, जो अल्लाह पर तवक्कल कर लेता है, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी दुनिया में भी कामयाबी है और आखिरत में भी कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं यही आप सबसे गुजारिश करूंगी कि अल्लाह की जात पर तवक्कल रखें कि अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू। जैसे अल्लाह ने हमें कामयाबी दिया, आज माशाअल्लाह हजारों, हमारी कंपनी हजारों लड़कियों के लिए जो है बेहतरीन एक रोजी का जरिया बन गई। और हमारे पास 15,000 इन्वेस्टर हैं जो मुसलमान ही, और हमारी कंपनी जो सूद से बिल्कुल खाली है, यानी कोई सूदी लेना देना उसके अंदर नहीं है। आज मेरी बहनों, ये जो सूद है ये हमारे जिंदगियों को खाता जा रहा है। यहां तक कि जो बंदा, कल मेरी एक बहन मुलाकात की थी, वो कहती है कि उसने 20,000 कहीं पर सूद को पैसे ले ली थी, उसकी सारी सैलरी जो है 13 साल से वो दे ही रही है, उसका खर्चा आज तक भी अदा नहीं हुआ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूद लेने वालों पर, देने वालों पर के अल्लाह और उसके रसूल का जंग का ऐलान है उसके ऊपर। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वहदहु इतनी कामयाबी दी। आज हमारी कंपनी वेस्ट अफ्रीका, दुबई, चाइना और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द सऊदी अरबिया और यूके में भी लॉन्च होने वाली है। मगर आज तक भी मैंने अल्लाह के दामन को, अल्लाह के कानून को, अल्लाह के हकाम को कभी भी नहीं छोड़ा। आज मैं इतना हल्का फील करती हूँ, ये सारे अहकाम पर चलते हुए ये सब को रन करना मेरे लिए कोई बात नहीं। तो मेरे लिए सिर्फ एक ही तालीम, जो कुरान की तालीम है, कुरान के बातों की तालीम है, वो तालीम अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बहुत
بہت بڑی کامیابی کا سبب بنی. میں اس سارے لوگوں سے یہی گزارش کروں گی کہ اللہ کے حکام پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیے, اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ کامیابی عطا کرے گا. جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ.